Hello, good afternoon, and welcome to our 52nd national webinar on research. First of all, I welcome all of you, and I hope all you are safe with your family, friends, and relatives. दोस्तों, कोरोना महामारी की ये सेकेंड वेव बहुत तेज़ी से फैलती जा रही है। इस महामारी में सबसे ज़रूरी है कि हम अपना और अपनों का ख्याल रखें। जहाँ तक हो दोस्तों, बिना काम के घर से बाहर ना निकलें। कोरोना वायरस को स्प्रेड होने से हमें अगर बचना है तो जब तक ज़रूरत ना हो हमें अपने घरों से बाहर नहीं निकलना चाहिए। ज़रूरत ना हो तो हमें मिलना जुलना भी नहीं करना चाहिए। खासकर हमें अपने घर के बच्चों पर ध्यान देना है। अभी कुछ दिन पहले कोरोना वायरस की तीसरी लहर के बारे में, वेव्स के बारे में भी बताया गया है। दोस्तों, आप सुरक्षित रहेंगे, सेफ रहेंगे तो ही आप आने वाले समय में घूमना फिरना, लोगों को मिलना कर पाएंगे। आप ऐसा समझकर चलिए ये परिस्थिति की घड़ी है। देशभक्ति और देश के प्रति आपकी जिम्मेदारी दिखाने का बिल्कुल सही समय है। एसके मीडिया रिसर्च यूट्यूब चैनल आपके साथ इस परिस्थिति में, इस कठिन समय में आपके साथ खड़ा है। नए नए मोटिवेशनल वेबिनार, मोटिवेशनल वीडियो हम लेकर के आते हैं ताकि आपके अंदर हमेशा पॉजिटिविटी बनी रहे। आप लोग अपने आप को पॉजिटिव फील करें। हर रात के बाद दिन आती है, हर बुरे वक्त के बाद में अच्छा वक्त भी आएगा। उम्मीद रखिए, उम्मीद मत तोड़िए। So now we are starting our 52nd national webinar on the topic of basic research. आज का हमारा जो 52nd वेबिनार है, जो हम लोग, हमारी टीम ने डिसाइड किया है कि हम रिसर्च के ऊपर लेंगे। हम आप लोगों को बताना चाहते हैं कि रिसर्च क्या है और रिसर्च में किन किन पहलुओं का ध्यान रखना पड़ता है और रिसर्च करने का पर्पज क्या है। सो माई सेल्फ डॉक्टर अतुल कुमार मिश्रा वेलकम्स all the participants to the today's webinar. The purpose of research is to enhance society by advancing knowledge through the development of scientific theories, concepts and ideas. A research purpose is made through forming hypotheses, collecting data, data analyzing results, forming conclusions, implementing finding into real life applications and forming new research questions. So the question is arising in our mind, what is research? Simply put, research is the process of discovering a new knowledge. This knowledge can be either the development of new concepts or the advancement of existing knowledge and theories.
leading to a new understanding that was not previously you know. As a normal definition of research, the research is a systematic investigation designed to develop or contribute to generalizable knowledge. While research can be carried out by anyone and in any field, most research is usually done to broaden knowledge in the physical, biological, and social worlds. This can range from learning why certain materials behave the way they do to asking why certain people are more resilient than others when faced with the same challenges. The use of systematic investigation in the formal definitions represents how research is normally conducted. A hypothesis is formed, appropriate research methods are designed, data is collected and analyzed, and research results are summarized into one or more research conclusions. These research conclusions are then shared with the rest of the scientific community to add to the existing knowledge and serves as evidence to form additional questions that can be investigated. It is this cyclical process that enables scientific research to make continuous progress over the years, the true purpose of research. तो दोस्तों, शोध की परिभाषा क्या है? शोध की आवश्यकता क्यों पड़ी? शोध अर्थात रिसर्च। अनुसंधान विभिन्न प्रकार की समस्याओं के समाधान को खोजने के लिए एक सुनियोजित एवं वैज्ञानिक विधि है। इसके अंतर्गत संबंधित समस्या के विभिन्न पक्षों के विषय में अनेक प्रकार की सामग्री यानी डेटा एकत्र करके तथा उसका विधिपूर्ण विश्लेषण करके समस्या का समाधान प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। इसे मान के चलिए, बालक झूठ बोलते हैं, विद्यार्थी परीक्षाओं में असफल क्यों होते हैं आदि। ज्ञान के प्रत्येक क्षेत्र में ऐसी अनेक समस्याएं सदैव उत्पन्न होती रहती हैं। ऐसे प्रश्न बार बार उभरते रहते हैं जिनके उत्तर उपलब्ध नहीं होते। इन समस्याओं के समाधान एवं अनुत्तरित प्रश्नों के विश्वसनीय एवं वैध उत्तर प्राप्त करने की विधि ही अनुसंधान है। तो शोध की परिभाषा क्या है? दोस्तों, कोई भी चीज को डीप नॉलेज में प्राप्त करना, उसके बारे में गहन अध्ययन करना और उसके अंदर से कोई कंक्लूजन निकालना, कोई नई चीज को प्राप्त करना, उसको हम रिसर्च करते हैं। शोध की परिभाषा क्या है? तो डेफिनेशन ऑफ रिसर्च, W.S. मुनरो के अनुसार अनुसंधान उन समस्याओं के अध्ययन की एक विधि है जिसका अपूर्ण तथा पूर्ण समाधान तथ्यों के आधार पर ढूंढना है। अनुसंधान रिसर्च के लिए तथ्य, लोगों के मतों के कथन, ऐतिहासिक तथ्य, लेख तथा अभिलेखों के परखने से प्राप्त फल, प्रश्नावली के उत्तर अथवा प्रयोगों से प्राप्त सामग्री हो सकती है। PM कुक के अनुसार
अनुसंधान एक ऐसा निरपेक्ष, व्यापक तथा बौद्धिक अन्वेषण है जिसमें एक दी गई समस्या से संबंधित तथ्यों तथा उनसे अर्थों अथवा संबंधों का अध्ययन किया जाता है। C.C. क्रॉफोर्ड के अनुसार अनुसंधान चिंतन की एक ऐसी क्रमबद्ध तथा विशुद्ध प्रविधि है जिसमें विशिष्ट यंत्रों, उपकरणों तथा प्रतिक्रियाओं का उपयोग इस उद्देश्य से किया जाता है ताकि एक समस्या का अधिक समुचित समाधान उपलब्ध हो सके। J.W. वेस्ट के अनुसार अनुसंधान से अधिकतर विवेचन की वैज्ञानिक पद्धति के उपयोग के नियमबद्ध, क्रमबद्ध तथा गहन प्रक्रम का पता लगता है। इसमें अन्वेषण के लिए एक अधिक व्यवस्थित संरचना अंतर्निहित रहती है जिससे उसमें अध्ययन की प्रक्रियाओं तथा परिणामों अथवा निष्कर्षों के प्रतिवेदन का सब प्रकार का नियमबद्ध अभिलेख रहता है। वी यंग क्या कहते हैं? वी यंग के शब्दों में अनुसंधान एक ऐसी व्यवस्थित विधि है जिसके द्वारा नवीन तथ्यों की खोज अथवा प्राचीन तथ्यों को पुष्टि की जाती है तथा उनके उन अनुक्रमों, पारस्परिक संबंधों, कारणात्मक व्याख्याओं तथा प्राकृतिक नियमों का अध्ययन करती है जो कि प्राप्त तथ्यों को निर्धारित करते हैं। So now we are discussing what is the purpose of research. From weather forecast to the discovery of antibiotics, researchers are constantly trying to feel or find now ways to understand the world and how things work. With the ultimate goal of improving our lives, the purpose of research is therefore to find out what is known, what is not, and what we can develop further. In this way, scientific can develop new theories, ideas, and products that shape our society and everyday lives. The purpose of research is to further understand the world and to learn how this knowledge can be applied to better everyday life. It is an integral part of problem solving. Although research can take many forms, there are three main purposes of research. Now we are discussing the main purpose of research is first, exploratory. Exploratory research is the first research to be conducted around a problem that has not yet been clearly defined. Exploration research therefore aims to gain a better understanding of the exact nature of the problem and not to provide a conclusive answer to the problem itself. This enables us to conduct more in-depth research later on. Second one is descriptive research. Descriptive research expands knowledge of a research problem or phenomenon by describing it according to its characteristics and populations. Descriptive research focuses on the how and what, but not on the why.
Explanatory research also referred to as causal research in conducting to determine how variables interact, for example to identify causes and effect relationship. Explanatory research deals with the why of research questions and is therefore often based on experiments. So the third one is explanatory. तो दोस्तों रिसर्च के उद्देश्य क्या है, यानी कि शोध के उद्देश्य क्या है। तो जैसा मैंने बताया कि शोध के यानी रिसर्च के 3 मेन उद्देश्य होते हैं। पहला, किसी समस्या का आकलन, किसी भी समस्या का आकलन। दूसरा, किसी भी तथ्य, घटना या स्थिति का वर्णन। और तीसरा, किसी तथ्य, घटना या स्थिति के निवारण अर्थ व्यवस्थाएं। संचार शोध का महत्व इंगित करने हेतु समस्या के चयन के बाद प्रारंभिक तैयारियां शुरू की जाती हैं। इसमें समस्याओं के बारे में ज़्यादा से ज़्यादा जानकारी प्राप्त करने और सूचना एकत्र करने के लिए अध्ययन के विभिन्न तरीके को अपनाया जाता है। सो नाउ वी आर डिस्कसिंग द कैरेक्टरिस्टिक ऑफ रिसर्च। There are 8 core characteristics that all research projects should have. Now we are discussing these. Number 1, empirical. Based on proven scientific methods derived from real life observations and experiments. Number 2, logical. Follows sequential procedures based on valid principles. Third, cyclic. Research begins with a question and ends with a question. For example, research should lead to a new line of questions. Controlled. Vigorous measures put into place to keep all variants or all variables constant except those under investigations. Fifth one, hypothesis based. The research design generates data that sufficiently meets the research objectives and can prove or disprove the hypothesis. It makes the research study repeatable and gives credibility to the results. Analytical. Data is generated, recorded and analyzed using proven techniques to ensure high accuracy and repeatability while minimizing potential errors and anomalies. Objective. Sound judgment is used by the researcher to ensure that the research findings are valid. Statistical treatment. Statistical treatment is used to transform the available data into something more meaningful from which knowledge can be gained. शोध की विशेषताएं और महत्व। अभी हमने
शोध की विशेषताओं और महत्व पर चर्चा करते हैं। अनुसंधान एक उद्देश्यपूर्ण सुव्यवस्थित बौद्धिक प्रक्रिया है। इसके द्वारा किसी सैद्धांतिक अथवा व्यवहारिक समस्या के समाधान का प्रयास किया जाता है। अनुसंधान एक वैज्ञानिक अन्वेषण पद्धति है। इस आधार पर अनुसंधान एक व्यवस्थित, नियंत्रित, निरपेक्ष, वस्तुनिष्ठ, गहन तथा अनुभविक अध्ययन होता है। अनुसंधान के द्वारा या तो किसी नए तथ्य, सिद्धांत, किसी विधि या वस्तु की खोज की जाती है अथवा प्राचीन तथा सिद्धांत, विधि या वस्तु में परिवर्तन किया जाता है। अनुसंधान में संबंधित समस्याओं के अध्ययन का आधार ऐसी परिकल्पना अथवा परिकल्पनात्मक तर्क वाक्य होते हैं जिनसे कि अनुभविक तथा मात्रात्मक अध्ययन में सुविधा होती है। इसमें संबंधित कार्य, आंकड़ों का विश्लेषण कठोर वैज्ञानिक तथा सांख्यिकीय पद्धतियों के आधार पर किया जाता है। इस प्रकार अनुसंधान का स्वरूप कुशल, विशिष्ट तथा वस्तुनिष्ठ होता है। इसके अंतर्गत जटिल घटना चक्रों को समझने के लिए विश्लेषण विधि का प्रयोग किया जाता है। इस विश्लेषण के लिए परिकल्पनाओं का निर्माण एवं परीक्षण किया जाता है। इसमें प्राप्त परिणामों तथा संबंधों की पुनरावृत्ति इस उद्देश्य से बार बार की जाती है ताकि सुनिश्चित तथा सुसंगत निष्कर्ष उपलब्ध हो। तो टाइप्स ऑफ रिसर्च। रिसर्च कैन बी डिवाइडेड इनटू टू मेन टाइप्स। दो टाइप की रिसर्च है, उसको हम दो पार्ट में डिवाइड कर सकते हैं। Number one, basic research, also known as a pure research, and applied research. Basic research, also known as pure research. Basic research, also known as pure research, is an original investigation into the reasons behind a process, phenomenon or particular event. It focuses on generating knowledge around existing basis principles. Basic research is generally considered non-commercial research because it does not focus on solving practical problems and has no immediate benefits or ways it can be applied. While basic research may not be have direct application, it usually provides new insight that can later be used in applied research. Second one is applied research. Applied research investigates well-known theories and principles in order to enhance knowledge around a practical aim. Because of this, applied research focusing on solving real-life problems by deriving knowledge which has an immediate application. So, शोध के कार्य। किसी भी कार्य का अस्तित्व, उसका प्रयोजन, उसकी अपेक्षाएं ही शोध की मुख्य भूमिका होती है। इन शोधों में तथ्यों को वर्गीकृत कर शोधार्थी अपना कार्य आरंभ करता है। प्रत्येक चीज को चिंतन, मनन, निरीक्षण, परीक्षण, परिकल्पना एवं अनुमान के धरातल पर जांचा परखा जाता है। उनसे एक निष्कर्ष निकलता है। यही निष्कर्ष टेलीविजन प्रविधि की भूमिका व कार्य को स्पष्ट करता है। शोधार्थी इन तथ्यों की जांच पड़ताल करते
बढ़ते पूर्ववर्ती शोधों की भूमिका व कार्य को भी महत्व प्रदान करता है। टीवी और अन्य दृश्य श्रव्य माध्यमों की भाषा क्योंकि हिंदी है, इसलिए भारत के बहुत भूभाग को दूरदर्शन ने प्रभावित किया है। अपने प्रसारणों के माध्यम से उसने आज समाज प्रचलन को एक नई व्याख्या प्रदान कर एक नई सामाजिक व्यवहार बदलाव की नींव रखी है। संचार शोध के मूलभूत तत्व क्या है, क्यों है, कैसे है, क्या होगा, क्या होना चाहिए। 5W व्हाट, व्हेन, व्हाई, वेयर, हु। प्रत्येक शोध विषय अलग अलग विधाओं और शाखाओं से संबंध होने के कारण इस प्रकार के तथ्यों को उजागर करता है। उपयुक्त शोधार्थी उन अनेक तथ्यों में से विषय की उपयोगिता व प्रामाणिकता के मापदंड पर पूरा उतरने वाले तथ्यों को ही चयनित करता है। इसके बाद तथ्यों का विश्लेषण व व्याख्या करते हुए वह उन मूलभूत सत्यों को खोजने का उपक्रम करता है जिनके संकेत उन तथ्यों में नियमित माप होते हैं। इस पूरी प्रक्रिया में उसे अनुमान, कल्पना, तर्क, प्रयोग आदि का आश्रय लेना पड़ता है। यह संपूर्ण प्रक्रिया तब तक जारी रहती है जब तक कि शोधार्थी इसे निर्णय पर नहीं पहुंच पाता, जो विषय के अध्ययन को आगे बढ़ाते हुए वर्तमान तथा तथ्यों एवं ज्ञान में वृद्धि करता है तथा वर्गीकरण, तर्कित, सुव्यवस्थित मीमांसा, विश्लेषणों, संश्लेषण आदि प्रकार के अध्ययन के अनुलक्षित तत्व हैं। शोध के अभिकल्प के चरण। जहाँ तक शोध अभिकल्प की रचना का सवाल है, इसमें यह कहा जाता है कि इसके अनेक चरणों से होकर गुजरना पड़ता है और इन चरणों को ही शोध का अनिवार्य अंग माना जा सकता है। इन चरणों की सहायता से एक शोध अभिकल्प का निर्माण किया जा सकता है। इसके महत्वपूर्ण चरण हम आपको बताने जा रहे हैं। इसका सर्वप्रथम कार्य है अध्ययन समस्या का प्रतिपादन करना। शोध अभिकल्प का यह पहला चरण है। दूसरा चरण यह है कि वर्तमान में जो शोध कार्य किया जा रहा है उसे शोध समस्या से स्पष्ट संबंधित किया जाए। तीसरे चरण में यह है कि वर्तमान में जिस शोध कार्य को करना है उसकी सीमाओं को स्पष्ट निर्धारित किया जाए। इसके चौथे चरण में यह है कि शोध के विभिन्न क्षेत्रों का विस्तृत विवरण प्रस्तुत किया जाए, अर्थात इस चरण में शोध के विभिन्न क्षेत्रों का पता लगाकर उसका वृत्त विवरण प्रस्तुत करना होता है। पांचवें चरण में शोध के परिणामों के प्रयोग के विषय में निर्णय लिया जाता है। छठा चरण यह है कि इसमें अवलोकन, विवरण तथा परिमापन के लिए उपयुक्त चरों का चयन करना चाहिए तथा इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। सातवें चरण में आपको इसमें अध्ययन क्षेत्र एवं समग्र का उचित चयन होना चाहिए एवं इसे स्पष्ट रूप से परिभाषित करना चाहिए। इसके आठवें चरण में यह है कि इसमें अध्ययन के प्रकार एवं विषय क्षेत्र के विषय में विस्तार से निर्णय लिया जाना चाहिए। नौवें चरण में यह है कि इसमें उपयुक्त विधियों एवं प्रविधियों का चयन किया जाना चाहिए। 10वें चरण में अध्ययन में निहित मान्यताओं एवं परिकल्पनाओं का स्पष्ट रूप से उल्लेख किया जाना चाहिए। 11वें चरण में यह है कि इसमें परिकल्पनाओं की परिचालनात्मक परिभाषा करते हुए इसे उस रूप में प्रस्तुत करना चाहिए जिसमें वह परीक्षण के योग्य हो। 12वां चरण में शोध के दौरान प्रयुक्त के लिए जाने वाले प्रलेखों, रिपोर्टों एवं अन्य प्रपत्रों का अवलोकन किया जाना चाहिए। ऐसा करना एक अच्छे शोध के लिए महत्वपूर्ण होता है। 13वें चरण में अध्ययन के प्रभावपूर्ण उपकरणों का चयन किया जाता है एवं इनका निर्माण कर व्यवस्थित से पहले परीक्षण किया जाता है। 14वें चरण में आंकड़ों के एकत्रीकरण का संपादन किस प्रकार किया जाएगा इसकी विस्तृत व्यवस्था का उल्लेख किया जाता है। 15वें चरण में आंकड़ों के वर्गीकरण के लिए उच्च श्रेणियों का चयन किया जाता है एवं उसकी परिभाषा की जाती है। 16वें चरण में यह है कि आंकड़ों के सांकेतिकरण के लिए समुचित व्यवस्था का विवरण तैयार किया जाता है। 17वें चरण में यह है कि इसमें आंकड़ों के प्रयोग योग्य बनाने के लिए संपूर्ण प्रक्रिया की समुचित व्यवस्था की जा सकती है।
18वें आंकड़ों के गुणात्मक एवं संख्यात्मक विश्लेषणों के लिए विस्तृत रूप से रूपरेखा तैयार की जाती है। नाउ वी आर डिस्कसिंग द मेथड ऑफ रिसर्च। Research methods for data collection fall into one of two categories, including inductive method or deductive method. Inductive research methods focus on the analysis of an observation and are usually associated with the qualitative research. Deductive research methods focus on the verification of an observation and are typically associated with the qualitative research. Number one, qualitative research. Qualitative research is a method that enables non-numerical data collection through open-ended methods such as interview, cases studies, and focus group. It enables research to collect the data on a personal experience, feelings, or behaviors as well as the reason behind them. Because of this, qualitative research is often used in fields such as social science, physical and philosophy, and other areas where it is useful to know the connection between what the occurred and why it occurred. Quantitative research. Quantitative research is a method that collects and analyzes numerical data through statistical analysis. It allows us to quantify variables, uncover relationships, and make generalization across a larger population. As a result, quantitative research is often used in the natural and physical science such as engineering, biological, chemistry, physics, computer science, finance, and medical research, etc. What does research involve? Research often follows a systematically approach known as scientific method, which is carried out using a hourless model. A research project first starts with problem statement, or rather the research purpose of engaging the study. This can take the form of scope of the study or aims and objective of your research topic. Subsequently, a literature review is carried out and hypothesis is formed. The researcher then creates a research methodology and a collection of the data. The data is then analyzed using various statistical methods, and the null hypothesis is either accepted or rejected. In both cases, the study and its conclusion are officially written up as a report or research paper, and the researcher may be also recommended lines of furthering questioning. The report or research paper is shared with the wider research community, and the cycle begins all over again. Although these steps outline the overall research process, keep in mind that research projects are highly dynamic and there are therefore considered an interactive process with continued refinements and not a series of fixed stages. तो प्रभाव के शोध का अर्थ मतलब मीनिंग ऑफ इफेक्टिंग रिसर्च। करलिंगर के अनुसार प्रभाव अनुसंधान को एक ऐसे अनुसंधान की परिभाषा दी जाती है जिनमें स्वतंत्र चर या एक से अधिक स्वतंत्र चर पहले ही घटित हो चुके हैं और अनुसंधानकर्ता परीक्षण का कार्य स्वतंत्र चर अथवा परतंत्र चरों से ही आरंभ करता है। इसके पश्चात ये स्वतंत्र चरों के एक परतंत्र चर अथवा एक से अधिक परतंत्र चरों पर पड़ने वाले संभाव्य संबंधों एवं प्रभाव का अध्ययन प्रतिगामी रूप से करता है। प्रभाव शोध को इस ढंग से परिभाषित किया जाता है कि प्रभाव शोध एक ऐसा अनुभाविक शोध होता है जिसमें शोधकर्ता चरों के बीच के संबंध के बारे में ऐसे स्वतंत्र चरों के आधार पर अनुमान लगाता है कि जिसकी अभिव्यक्ति पहले से ही हो चुकी है। इस तरह के शोध में अनुसंधानकर्ता एवं स्वतंत्र चरों की अभिव्यक्ति पर ऐसा नियंत्रण नहीं रहता है क्योंकि वे प्रभाव दिखाने के लिए बहुत पहले ही घटित हो चुके होते हैं। यदि ऐसी परिभाषित का वास्तविक विश्लेषण करते हैं तो हम निम्नांकित निष्कर्ष पर पहुंचते हैं।
इस तरह के शोध में चूंकि शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर इसके संभावित कारणों का पता लगाता है, अतः प्रभाव के आधार पर कारण के अध्ययन की यह रीति अन्य शोधों की रीति से विपरीत होती है, जिनमें सामान्यतः कारण के आधार पर प्रभाव के बारे में अनुमान लगाया जाता है। नंबर 2, इस तरह के शोध में स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति बहुत ही पहले हो चुकी होती है। इस तरह के शोध में चूंकि स्वतंत्र चर की अभिव्यक्ति बहुत पहले ही हो चुकी होती है, अतः इसके जोड़ तोड़ पर शोधकर्ता का नियंत्रण नहीं होता है। प्रभाव शोध एक अनुभाविक शोध है, अतः यह एक प्रकार का वैज्ञानिक शोध भी होता है। प्रभाव शोध के महत्व। प्रभाव शोध का संचालन सरल होता है क्योंकि यहाँ शोधकर्ता को एक स्वतंत्र चर में कोई जोड़ तोड़ करना संभव नहीं होता है। कुछ विशेष परिस्थितियों में जहाँ शोधकर्ता को किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर उनके कारणों का अध्ययन किया जाना ही मात्र विकल्प होता है, प्रभाव शोध ही एक प्रमुख लाभदायक शोध सिद्ध होता है। ऐसी परिस्थिति में अन्य दूसरे तरह के शोध का संचालन भी नहीं किया जा सकता है। प्रभाव शोध को व्यवहारात्मक शोधों में से अधिक अहमियत प्राप्त है क्योंकि बहुत सारी परिस्थितियां ऐसी होती हैं जहां चरों में जोड़ तोड़ करना संभव नहीं हो पाता है। कई समाजशास्त्री तथा शैक्षणिक चर इस श्रेणी में हैं जिनमें जोड़ तोड़ करना संभव नहीं है, फिर भी उन्हें अध्ययन करना आवश्यक है। ऐसी परिस्थिति में प्रभाव शोध के अलावा कोई भी उचित विकल्प नहीं रह जाता है। प्रभाव शोध की परिसीमाएं। इस तरह के शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच के संबंध की उचित व्याख्या नहीं कर पाता है और वह प्रायः पोस्ट होकर दोष का शिकार हो जाता है। इसमें शोधकर्ता को दो कारक में से एक को कारण और दूसरे को प्रभाव सिर्फ इसलिए मान लेता है क्योंकि दोनों हमेशा साथ साथ होते पाए जाते हैं। जैसे धूम्रपान तथा कैंसर में प्राय एक निकट संबंध होता है, इसीलिए इसी शोधकर्ता इस निष्कर्ष पर पहुंच सकता है कि धूम्रपान कारण है जबकि कैंसर उसका प्रभाव है। हालांकि ये हो सकता है कि इस तरह के व्यक्ति में कैंसर का कारण प्रांतीय अंशुरंतन या कोई अन्य कारण हो। प्रभाव शोध में चूंकि शोधकर्ता स्वतंत्र चर में जोड़ तोड़ नहीं कर पाता है, इसलिए स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के प्रस्तावित संबंध के बारे में यथार्थ ढंग से किसी प्रकार का पूर्वानुमान लगाना कठिन हो जाता है। प्रभाव शोध में शोधकर्ता स्वतंत्र चर पर नियंत्रण यदि यादृच्छिक कारण के द्वारा करना चाहे तो वह नहीं कर सकता। इसमें शोध के परिणामों पर निर्भरता स्वभावतः कम हो जाती है। और अब वेबिनार के लास्ट में हम आपको प्रभाव शोध की त्रुटियों का निराकरण बताते हैं। प्रभाव शोध के दोषों का उल्लेख ऊपर किया जा चुका, जो मैंने आपको पहले बताया है वेबिनार के वीडियो में, आप पहले बाद में देख सकते हैं। इन दोषों को यथासंभव दूर करके इसे और उपयोगी बनाया जा सकता है। दोषों या त्रुटियों के निराकरण के लिए हम अभी आपको कुछ उपाय का बताने जा रहे हैं। लेथ्रोपल के अनुसार संचयी प्रमाण विधि के द्वारा प्रभाव शोध की त्रुटियों को दूर किया जा सकता है। उनके अनुसार विभिन्न प्रभाव अध्ययनों के माध्यम से कारणता का पता लगाया जा सकता है। मॉसी 1984 ने कर्लिंगर 1973 के विचार का समर्थन किया है और कहा है कि अधिक से अधिक संभावित परिकल्पनाओं के परीक्षण के आधार पर घटना के रूप में घटित आश्रित कारण के रूप में घटित होने वाले वास्तविक स्वतंत्र चर या चरों का पता लगाया जा सकता है। उनके अपने शब्दों में प्रभाव शोधों में स्वतंत्र चर पर नियंत्रण प्राप्त करने का एकमात्र उपाय बहुपरिकल्पना परीक्षण है। तो दोस्तों, नाउ our 52nd national webinar is closed or done, and I again thanks to all the viewers and all the students and our SK Media Research team, Dr. Purti Trivedi, Dr. Sujan Patel and myself Dr. Atul Kumar Mishra, very thankful all of you to attend today's webinar। and हम ये उम्मीद करते हैं
हम आशा रखते हैं दोस्तों कि आप इस कोरोना वायरस की सेकेंड वेव में अपने और अपने परिवार का बहुत अच्छे तरीके से ख्याल रखेंगे, गवर्नमेंट द्वारा दी गई गाइडलाइन का पालन करेंगे और ज़्यादा ज़रूरी ना हो, बहुत ज़रूरी काम ना हो तो कृपया घर से बाहर ना निकलें। मेरी आप लोगों से यह विनती है, अपील है कि आप ज़्यादा से ज़्यादा घर पर वक्त बिताएं, अच्छे अच्छे वीडियो देखें, किताबें पढ़ें और कोई नई नई चीज़ों के बारे में विचार विमर्श करते रहें। और दूसरी एक इम्पोर्टेंट चीज़ कि कोरोना वायरस के बारे में ज़्यादा विचार ना करें, उसकी नेगेटिव न्यूज़ को ज़्यादा ना सुने, ध्यान ना दें, ताकि आपके मन में कोरोना वायरस का किसी भी प्रकार का भय ना बने और आप उससे लड़ने के लिए अपनी इम्यूनिटी को डेवलप करते रहें। संतुलित आहार लें और दोस्तों के साथ हंसी मजाक और खुश से रहें, बट जितना हो सके सोशल डिस्टेंसिंग को मेंटेन रखिए और बिना काम के घर से बाहर मत निकलिए, मास्क का उपयोग करिए। धन्यवाद, थैंक यू एंड मीट यू अगेन नेक्स्ट संडे एस ऑन टाइम। बाय बाय, टेक केयर, गुड डे।